preparation of glucose. How glucose is prepared? Glucose occur in nature as well as it can be prepared artificially. Glucose can be prepared by two different methods, one from sucrose and second from starch. This is laboratory method, small scale method, and there is commercial method or large scale method. So preparation of glucose from sucrose. Sucrose as we know C12H22O11 जो कि अपन डाइसैकराइड्स में पढ़े थे. डाइसैकराइड्स में sucrose on hydrolysis gives one molecule of glucose and one molecule of fructose. So sucrose when undergo acid hydrolysis by using heat in the presence of dilute HCl or H2SO4 for about 2 hours, then it gives the mixture of glucose and fructose. सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H positive is the symbol for acid, HCl, H2SO4 like this. Then heating condition, it gives mixture of glucose and fructose. Now glucose and fructose they can be separated by using alcohol like ethanol. Glucose separated from fructose by adding ethanol during cooling, as glucose is insoluble in the ethanol but fructose being completely soluble. And therefore glucose crystallizes out first. Glucose crystallizes out first, or crystals of glucose is obtained in ethanol, and therefore solution is filtered to obtain the crystals of glucose. फिल्ट्रेट के अंदर फ्रुक्टोज चला गया और जो फिल्टर पेपर के ऊपर अपने को मिलेगा वो कौन रहेगा, तो ग्लूकोज. मतलब फिल्ट्रेशन से इनको सेपरेट किया जा सकता है बिकॉज वन इज सॉल्युबल इन इथेनॉल व्हाइल अदर इज इनसॉल्युबल एंड ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. Therefore, what is separation? How they are separated? Glucose and fructose can be separated by adding ethanol during the cooling. Glucose is insoluble and it remains in the form of crystals, while fructose is completely soluble and therefore they can be separated by filtration method. Second commercial method is from starch. Starch जो अपने को polysaccharides के अंदर आया था, polysaccharides जिसको अपन डिफाइन किए थे कि दे आर दी कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स इंडेफिनिट मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स. वहां पर ये फार्मूला आया था अपने को C6H10O5/N. सो स्टार्च अगेन कमर्शियल मेथड इज देयर. कमर्शियली ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च. अगेन इसका भी हाइड्रोलाइसिस ही करना है in the presence of again acid like HCl, H2SO4 etc. at about 393 Kelvin under 2 to 3 atmospheric pressure, then n number of glucose obtained. Indefinite molecules of glucose. So this is commercial method and there is no scope for separation as only glucose is obtained in this, no side product is obtained. So these two methods for preparation of glucose. How glucose is prepared? So in laboratory it is prepared from sucrose, and how it is prepared commercially? So commercially it is prepared from starch. दोनों में एसिड हाइड्रोलाइसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक HCl, H2SO4 एक्सेट्रा. बस यहाँ पर दो मिलते हैं, इनको सेपरेट किया जाता है. सेपरेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इथेनॉल. इथेनॉल के अंदर ग्लूकोज के क्रिस्टल्स निकल आएंगे, क्रिस्टलाइजेस आउट फर्स्ट एंड देयरफॉर सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज. तो यहाँ पर सेपरेशन का भी कोई इशू नहीं है. नाउ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. नेक्स्ट पार्ट जो है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज. What are the properties of glucose? So actually glucose consists of one aldehyde group, this one aldehyde group or formyl group is present. Then the remaining 5 carbon atom consist of hydroxyl group, OH group. Every carbon atom consists of 5 OH group because glucose is stable compound. That means OH groups are present on the different carbon atom, and 6 carbon atom in the glucose form the straight chain. और ये कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा. सो फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस. कौन से एलिमेंट होने चाहिए उसका एनालिसिस हुआ है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो एलिमेंटल एनालिसिस. एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. दे आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. What are colligative property? The property which depends only on the number of particle. तो वो particles पे dependent property, colligative property, इसकी study हुई तब ये पता चला कि molecular formula of glucose was found to be C6H12O6. मतलब फॉर्मूले से स्ट्रक्चर तक जाना है अपने को. तो पहला पॉइंट, what is first point? तो on the basis of elemental analysis and colligative properties, molecular formula of glucose was found to be C6H12O6. अब वन बाय वन रिएक्शन, क्या क्या ग्रुप है, कौन से ग्रुप है, वो कौन से रिएक्शन से कंफर्म हुए हैं. तो फर्स्ट ग्लूकोज गिव्स एन हेक्सेन ऑन रिडक्शन बाय HI.
glucose C6H12O6 when it undergo reduction means addition of hydrogen. Yes, so when glucose undergo reduction हुआ by using HI हाइड्रोजन आयोडाइड, देन N-हेक्सेन इज ऑब्टेन। यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हुए, ऑक्सीजन किसके साथ इंटरेक्ट हो गए, हाइड्रोजन के साथ, और क्या फॉर्म हुए, तो वाटर। कितने वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, तो ऑक्सीजन 6 है, माने 6H2O बाहर निकल जाएंगे। 12 तो हाइड्रोजन उसके लगेंगे बाहर निकालने के लिए, 6 ऑक्सीजन को बाहर निकालना है वाटर के फॉर्म में, दैट मींस 12 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड। और बाकी दो जो है वो यहाँ पर ऐड होंगे, क्योंकि C6H12 से C6H14 अल्केन का फॉर्मूला CnH12+2। अगर C6 है तो उसके डबल +2, मतलब डबल होंगे 12 + 2 14। तो इधर तो ऑलरेडी 12 है, 12 से 14 करना है, मतलब 2 हाइड्रोजन इधर देना है और रिमेनिंग 12 इधर देना है। तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन, 14। सो व्हेन glucose undergoes reduction by using HI as a reducing agent, then there is formation of N-hexane, and this indicates that 6 carbon atom present in a straight chain। ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, हर एक रिएक्शन से कुछ कुछ इंडिकेट हुआ है और फाइनली स्ट्रक्चर मिला है। तो दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन। अगर वो स्ट्रेट चेन में नहीं रहते थे तो हेक्सेन नहीं मिल पाता था। दैट मींस दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट 6 कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन। नाउ सी सेकंड वन, glucose on reaction with hydroxylamine, as we know hydroxylamine NH2OH, जो अपने को अल्डिहाइड कीटोन में आया था, ये पार्ट के एडिशन रिएक्शन में आया था, एडिशन ऑफ HCN टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग साइनाइड्स, और वही कंडेंसेशन में आया था कि व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन देन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। तो वो बेसिस पर ही ये पार्ट है कि when glucose react with the hydroxylamine NH2OH, जो कंडेंसेशन में पढ़े थे अपन अल्डिहाइड कीटोन में, वैसे ही सेम प्रोडक्ट बनता है, ऑक्साइड ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन। ऑक्साइड कैसे मिलेगा, तो यहाँ से H2 और O ये बाहर निकल गया, फिर बचा क्या है, तो C डबल बॉन्ड O निकल गया H2 के साथ में, NOH बचा है, डबल बॉन्ड NOH, दैट मींस ऑक्साइड। कार्बन को डबल बॉन्ड NOH ग्रुप है, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑक्साइन। सो ऑक्साइन इज ऑब्टेन्ड। सिमिलरली ऑन रिएक्शन विद HCl इट गिव्स साइनोहाइड्रीन। अगर वो HCl के साथ में रिएक्ट हुआ है, जैसे अपन अल्डिहाइड कीटोन में पढ़े थे एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड होने के कारण वो एडिशन रिएक्शन बताएगा। एक जो है हाइड्रोजन हो जाएगा O की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट, और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव है तो Cn निगेटिव वाला पार्ट उसको जाके अटैच हो जाएगा, एंड डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। दैट मींस यहाँ पर डबल बॉन्ड O से बन जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, और इधर कुछ भी नहीं था तो इधर आ गया सिंगल बॉन्ड Cn, एंड दिस इज साइनोहाइड्रीन। एंड दिस बोथ रिएक्शन इंडिकेट दैट वन कार्बोनिल ग्रुप इज देयर, because aldehyde and ketone both contain carbonyl group, and this is a particular reaction for carbonyl group। मतलब यहाँ पर ऑक्सो ग्रुप या फिर कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म हो गया है C डबल बॉन्ड O। अगर नहीं होता था तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं बताता था, इधर कंडेंसेशन नहीं बताता था, दोनों रिएक्शन बता रहा है। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, एक ही रिएक्शन में अपन दो पार्ट किए हैं, ये कंटिन्यू ऐसा नहीं है। ये पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। तो पहला पार्ट कंसीडर करो कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH देन ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, और सेकंड रिएक्शन क्या है, तो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN देन साइनोहाइड्रीन ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड। और दोनों रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, तो दिस इंडिकेट दैट इट हैज वन कार्बोनिल ग्रुप। मतलब पहले क्या पता चला कि 6 कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन, कैसे, तो बाय रिडक्शन विद HI because N-hexane is obtained। अभी क्या पता चला, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट because it react with the hydroxylamine as well as HCl। Now next point, glucose on oxidation by, ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं by using mild oxidizing agent like bromine water, then gluconic acid is obtained। ऑक्सीडेशन तो करना है पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, माइल्ड वाला। when glucose undergo oxidation, जैसे इधर क्या किया था, रिडक्शन, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अभी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जनरली नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, उसको अपन ज्यादा प्रीफर करते हैं, सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज इसका ऑक्सीडेशन किया बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर। अभी क्या होगा, तो ये CHO जो है अल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज कन्वर्टेड इनटू COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये O जो है इसमें ऐड हो गया, CHO कन्वर्टेड इनटू COOH, ऑक्सीजन की एडिशन, COOH,
and this is called as the gluconic acid. This is called as gluconic acid. That means when glucose undergo oxidation by bromine water, then gluconic acid is obtained, and this reaction shows that, indicates that जो अपन कार्बोनिल ग्रुप बोल रहे थे, that कार्बोनिल ग्रुप is definitely aldehydic, not ketonic. क्योंकि aldehyde C है, aldehydes का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए जो C डबल बॉन्ड लो है, यहाँ पर अपने को सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म हुआ था, तो कार्बोनिल में दो पॉसिबिलिटीज थी, इधर अल्डिहाइड और कीटोन, पर ये रिएक्शन से पता चलता है कि इट इज नॉट कीटोनिक, इट इज अ अल्डिहाइडिक ग्रुप. Why? Because only aldehyde on first oxidation gives a carboxylic acid. So CHO converted into COOH. That means glucose on oxidation by mild oxidizing agent like bromine water, then gluconic acid is obtained, and this indicates that this carbonyl group is definitely aldehydic group or aldehydic form. Now next reaction, glucose will react with acetic anhydride. Now see acetic anhydride, या तो acetyl chloride भी ले सकते हैं या फिर acetic anhydride. Acetyl chloride, acetic anhydride both are acetyling agent. Acetylation अगर किसी को करना है, किसी का acetylation अगर करना है, तो उसके लिए अपन या तो दो ऑप्शन है, इधर acetyl chloride और acetic anhydride. acetyl chloride अगर लेते थे तो CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये भी चलता था, या फिर दूसरा ऑप्शन लिया है मैंने acetic anhydride in the presence of pyridine. जनरली कैटलिस्ट कौन सा लगता है ये रिएक्शन के लिए, तो pyridine, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड C5H5N. So when glucose react with the acetic anhydride, अब होता क्या है, तो जितने अल्कोहलिक ग्रुप के H है, कौन से अल्कोहलिक ग्रुप H, इधर बताया था मैंने कि देयर आर 5 अल्कोहलिक ग्रुप, 4 ये थे जो सेकेंडरी टाइप में थे और एक ये था जो प्राइमरी था. टोटल अल्कोहलिक ग्रुप कितने थे, 5. टोटल 5 अल्कोहलिक ग्रुप के जो हाइड्रोजन आइटम है, दिस 1 एंड दिस 4 टाइम्स, मतलब टोटल 5 H रिप्लेस होंगे. किसके साथ होंगे, तो 5 CH3COO के साथ. इसके साथ 5 टाइम्स CH3COO और ये 5, देखो यहाँ के 4 हाइड्रोजन, यहाँ का H, टोटल कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन और 5 CH3COO के साथ, मतलब साइड प्रोडक्ट हो जाएगा इधर 5 टाइम्स CH3COOH, एसिटिक एसिड. कैसे, तो CH3COOH ये एक हो गया, ऐसे ये 4 और ये टोटल इसको अपन ने 5 बना दिया, मतलब 5 एसिटिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड एज अ साइड प्रोडक्ट. अब क्या होगा, जहां से H निकले, मतलब 4 और 5, वहां पर ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप, इथेनॉल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब जो इधर था अपना CHO, उसके बाद में क्या था, H था, तो H गायब होके ये वाला ग्रुप आ गया, कौन सा, COCH3, या तो C डबल बॉन्ड को CH से लिखो या फिर COCH3. ऐसे कितने टाइम्स मिला इसको, 4 टाइम्स, और एक यहाँ का H निकला, मतलब CH2OH था तो CH2O, H तो गायब हो गया, उसकी जगह पर कौन सा ग्रुप आ गया, अगेन C डबल बॉन्ड को CH3 या फिर डायरेक्ट COCH3. दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट या फिर पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज. And this indicates that 5 hydroxyl group present on the different carbon atom. ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, तो पांचों के पांचों OH ग्रुप जो है, they are present on the different carbon atoms so that stable compound is obtained. अगर इसकी जगह पर मैं एसिटाइल क्लोराइड लेता था, तो रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट तो यही आता था, इसको 5 लेना पड़ता था मेरे को. देखो फिर ये 5 H जो थे, 4 और 1 5, ये 5 Cl के साथ में निकल जाते थे, मतलब यहाँ का साइड प्रोडक्ट 5 CH3COOH की जगह पर 5 टाइम्स HCl बनता था. फिर से ये 5 ग्रुप यहाँ पर जाते थे, 4 इधर और 1 इधर, मतलब प्रोडक्ट सेम रहता था, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, बस साइड प्रोडक्ट जो है वो, अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड लेता था तो साइड प्रोडक्ट 5 HCl था, पर मैंने एसिटिक अनहाइड्राइड लिया है, इसलिए साइड प्रोडक्ट आ गया 5 टाइम्स एसिटिक एसिड. एंड दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट 5 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट कार्बन आइटम. तो यहाँ तक ये कंफर्म हुआ. अभी लास्ट रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, देखो, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन बाय सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देन इट गिव्स सैक्रिक एसिड. इधर भी अपन ने ऑक्सीडेशन किया था, पर ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ग्लूकोनिक एसिड डायरेक्ट CHO का COOH बना था. अभी ऑक्सीडेशन करना है बट बाय सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3.
अब ये क्या करता है, ये CHO में तो ऑक्सीजन ऐड होगा ही, दैट मीन्स COOH, पर यहाँ का H2O भी बाहर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर H2O, और 2 ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएंगे, मतलब COOH। मतलब देखो 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन इधर, दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ 3 नेसेंट ऑक्सीजन। That means when glucose undergo oxidation by nitric acid, which is a strong oxidizing agent, bromine water is a mild oxidizing agent, जिसमें एक ही CHO का COOH हुआ था। इधर जैसे अपन बोलते हैं कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो रहता है, that on oxidation gives aldehyde, aldehyde on further oxidation gives carboxylic acid, 2 स्टेप में। वैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगेंगे, पहले वो बनेगा CHO, फिर बनेगा COOH, मतलब 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर, टोटल रिक्वायरमेंट लगेगी 3, और क्या फॉर्म हुआ तो सैक्रिक एसिड। दिस इंडिकेट दैट इट कंटेन 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, प्राइमरी अल्कोहल ही है जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं एल्डिहाइड से, तो इसलिए दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इज कंफर्म। ये जो है CH2H ये प्राइमरी, क्योंकि टोटल OH कितने हैं इसमें, तो 4 टाइम्स OH और ये 5 टाइम्स, 5 में से ये 4 बीच में है मतलब सेकेंडरी, और ये लास्ट में है, दैट मींस इट इज अ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, तो सैक्रिक एसिड इज ऑब्टेन। यही नहीं, ये भी ले लेते तो इसका भी ऑक्सीडेशन वही बनता था, ग्लूकोनिक एसिड, सी है ग्लूकोनिक एसिड जो यहाँ पर आपने को मिला था COOH, then CHOH by 4 and then CH2H. Again when it undergo oxidation by using dilute HNO3, same product COOH, सैक्रिक एसिड बनता था CHOH by 4, फिर से ये H2 गायब होके COOH plus H2, मतलब यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑलरेडी COOH ग्रुप प्रेजेंट है। अगेन दिस इज द सैक्रिक एसिड, ये वाला भी कौन सा कंपाउंड है तो सैक्रिक एसिड, मतलब ग्लूकोनिक एसिड से भी सैक्रिक एसिड बन सकता है बाय ऑक्सीडेशन विथ 2 नेसेंट ऑक्सीजन, और ग्लूकोज से सैक्रिक एसिड अगेन बन सकता है बाय ऑक्सीडेशन बाय 3 नेसेंट ऑक्सीजन। सो ऐसे 6 पॉइंट है जिससे ग्लूकोज का कंफर्म स्ट्रक्चर मिलता है अपने को, जो CHO then CHOH by 4 and then CH2OH. So this is about the structural properties of glucose. Glucose के structural properties पढ़ने के लिए अपन 6 रिएक्शन पढ़े। पहला कौन सा था, on the basis of elemental analysis and colligative property study. It is found that the molecular formula of glucose is C6H12O6. Then second, glucose undergo reduction by using HI, reducing agent, hydrogen iodide. Then it gives N-hexane. It indicates that 6 carbon atoms are present in a straight chain. When glucose undergo reaction with hydroxyamine, then oxime of glucose is obtained. While when glucose react with HCl, then cyanohydrin of glucose is obtained. Both reaction indicate that presence of 1 carbonyl group. पर यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है वो aldehyde है या कीटोन है। When glucose undergo oxidation by mild oxidizing agent bromine water, then gluconic acid is obtained, and this indicates that this carbonyl group is definitely in aldehydic form, CHO. Then glucose react with acetic anhydride, it gives penta-acetyl glucose, बराबर 5 H रिप्लेस हो गए, 5 acetyl ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गए, इसलिए ग्लूकोज penta-acetate और penta-acetyl glucose, and this indicates that 5 OH groups are present on the different carbon atoms. Then finally, when glucose undergo oxidation by some strong oxidizing agent like dilute nitric acid or gluconic acid undergo oxidation by using dilute nitric acid, then both give saccharic acid, and this indicates that 1 primary alcoholic group is confirmed. Okay, thank you.